Hello everyone, welcome back to this channel and today we are going to see a match which was played between Mikhail Tal and Rashid Nazmuddinov. And for the people who doesn't know who is Rashid Nazmuddinov, he's a guy who was feared by all the grandmaster at that time. इन्होंने हर बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है एंड नॉट जस्ट इन्होंने हराया है, इन्होंने उनका ईगो छीन लिया है by sacrificing pieces just like a game style of Mikhail Tal. So what happens if two people, two highest caliber people and two people of same category and same playing style meets against each other? And Mikhail Tal को Rashid Nazmuddinov इतने पसंद है, he is a best friend of him. He says that this game was the best day of his life. So क्यों ये best day of his life है? Even after Mikhail Tal got defeated by Rashid Nazmuddinov, and we are going to see that today. So what happens is Rashid Nazmuddinov is playing with white pieces और Mikhail Tal black के साथ खेल रहे. So Rashid goes for e4 और Mikhail Tal goes for Sicilian c5. So knight develops and this structure Mikhail Tal ने बनाया है, बड़ा ही strong structure है. So he goes for an open Sicilian and after this everyone is bringing the pieces here. देखिए pieces develop हो रहे हैं and ये Snapdragon variation है in Sicilian. This is a classical variation. And after this Rashid tries to go for this push, but सम पीपल माइट थिंक कि भाई ये तो नाइडॉर्फ वाला सेटअप है, राइट? कि यहाँ पे जो सैक्रिफाइस वगैरह बनता है वो कहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे बिशप हुआ करता था. सो या you are going to see same kind of position, but what happens is after this suppose this after this bishop should develop here and suppose कि knight ऑफ का वो अपने a6 मूव कर लिया and after that this knight is pinned to this queen. So you say कि मैं ये knight develop करूंगा यहाँ से and अगर bishop ने कहीं पर ले लिया तो ये करूंगा and after that we castle and only this move if it is played, this is going to be a kind of blunder because now there is a sacrifice valid over here. अब ये valid क्यों है? क्योंकि यहाँ पर attack है. You need to move your queen attacking this knight. So you develop here and now this knight is going to develop trying to say कि भाई जल्दी से ट्रेड करो वरना ये 4 कहाँ रहा है यहाँ पे. and now you have to take with this and after this pawn takes और ये नाइट क्या ही आउटपोस्ट स्क्वायर पे है. इतना घटिया स्क्वायर दिया है मतलब इस नाइट को कि ब्लैक के किंग ने पहले यहीं पर इस पोजीशन पे रिजाइन कर देना चाहिए. एंड आफ्टर दिस व्हाट एल्स कैन यू प्लेड? मतलब क्या खेल सकते हो आप यहाँ पे? सपोज समथिंग यू ट्राई टू से कि बिशप को मुझे मुझे मूव करना है एंड यू प्ले समथिंग लेजी लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी चेकमेट इन 3 मूव्स. देखिए क्या क्या कोई स्क्वायर है किंग के पास? नहीं है. एंड दिस इज व्हाट चेकमेट लुक्स लाइक इफ यू प्ले सच काइंड ऑफ वेरिएशन एंड डू नॉट जस्ट मतलब आपने केयर नहीं किया पोजीशन की तो. बट दिस डिडंट हैपन इन दिस गेम. और क्या हुआ यहाँ पे कि सेम काइंड ऑफ पोजीशन आ रही है. ओके हमारा बिशप यहाँ पे नहीं है and after that what happens is Rashid Nazmuddinov in this position says ki Misha, you are one of the greatest attacking player, but can you face the aggression of Rashid Nazmuddinov? And now Misha says ki yeah, I am ready for this day. I was born for this day. And Misha says I am ready for your attack, but first I am going to attack your this night ट्राइंग टू डिसलॉज दिस. कहाँ पर है? या पूरा पीछे जाओगे या आगे तो नहीं आ सकते आप कहीं पर, पूरा ही पीछे जाना पड़ेगा. सो नाउ रशीद इज गोइंग टू प्ले A3 सेइंग कि भाई अब आगे नहीं आ सकते क्योंकि अब अगर आगे आ गया तो भाई मैं सीधा ट्रेड कर दूंगा. सो नाउ देयर शुड बी अ चेंज इन प्लान ऑफ यू मीशा. सो मीशा सेज ओके आई विल डेवलप माई बिशप ओवर हियर सेइंग कि भाई इस पॉन के ऊपर डबल अटैक है, आपके पास एक ही डिफेंडर है. So now this pawn becomes like a Rashmika Mandana and everyone is going behind this pawn saying कि भाई अब देखिए इसके लिए 2 डिफेंडर है. and now Rashmika Mandana is still attractive, so they say कि मैं ये नाइट डेवलप करके फिर से अटैक करूंगा इसके ऊपर. but we all love Rashmika, right? So after this is protected against. so इसने इन्होंने कहा कि भाई देखो 3 बार डिफेंड किया मैंने इसको. and now what is Mikhail Tal going to play here? मिकाइल सेज कि ओके अब वो रश्मिका मंदाना को हम हाथ नहीं लगाएंगे बट हम आपके इस ये जो आप घर बना रहे हो मेरे मतलब ये जो आर्मी बना रहे हो मेरे पास आने के लिए, हम उसके इंटीग्रिटी पे आस्क करेंगे क्वेश्चन कि इसको ब्रेक करना है. आपका नाइट हैंगिंग है, आप पहले ही सोच लो क्या करना है. ये पॉन भी अभी हैंगिंग होगा पर हैंगिंग नहीं है, प्रोटेक्टेड है, बट आपका ये फिर वो पुश का आइडिया चला जाएगा. एंड देन व्हाट हियर Rashid Nazmuddinov is going to do is he is going to develop this knight to an outpost square. अब ये नाइट यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहा था मिकाइल ताल के ऊपर. सो मिकाइल ताल को ये नाइट अपने पोजीशन में पसंद नहीं था तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इस नाइट को मूव करवाना चाहता हूँ. अब ये नाइट कहाँ पे मूव होगा? दिस नाइट मूव्स nowhere and Rashid says कि आई एम गोना टेक दिस. एंड इफ यू ट्राई टू
somehow take my knight, I'm gonna take your knight. What it might look like is something like this. After this take, and what are you gonna play? You suppose you try to say कि भाई ये center वाला कौन लेगा, मैं तो इसको open करना चाहता हूँ. Then after this, your knight is going to develop and saying कि भाई queen के ऊपर attack है. Queen moves here, and now you say कि भाई ये move से मैं queen के ऊपर attack कर दूंगा as a beginner player. So this would be a great mistake because ये रुक open हो चुका है and आपने खुद के king के सामने bishop को रखा है. So that is not going to happen. And suppose after this move, what else can you play? You can just go back and protect yourself. So this can happen, but they both don't want to play this kind of position, which is still winning for Rashid Nazmuddinov. And after this, Misha says, ki, okay, I'm not gonna go for that stuff. I'm just gonna take this, and this is still hanging over here. So after this, Rashid goes for this move because ये नाइट हैंगिंग था, राइट. सो ही गोज फॉर दिस मूव सेइंग कि क्या बिशप पेयर मुझे दे दोगे, क्योंकि थोड़े ही टाइम में ये पोजीशन ओपन होने वाली है. सो मिकाइल ताल इज नॉट गोना गो फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ. मिकाइल ताल लव्स बिशप पेयर एंड एवरी ग्रैंड मास्टर लव्स बिशप पेयर. सो मिकाइल ताल जस्ट tries to maneuver this knight over here to somewhere else, trying to go for some like outpost square, and he try to do something else. So यहाँ पे बिशप को पहले पीछे मूव किया गया है because queen को mobility मिलेगी यहाँ पे. After this push maybe some different ideas he has. So after that this bishop is going to develop. और ये नाइट देखिए, ये नाइट को कोई लेना ही नहीं चाहता क्योंकि ये नाइट एकदम कोपचे में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. द ओनली थिंग गुड अबाउट दिस नाइट इज ही इज ट्राइंग टू जस्ट प्रोटेक्ट ये कासल नहीं होने देगा इस पोजीशन पे यहाँ पर. सो आफ्टर दिस नाउ रशीद प्लेज दिस मूव. एंड व्हाई दिस इज ब्रिलियंट? बिकॉज दिस नेक्स्ट सीरीज ऑफ मूव विच इज गोइंग टू कम. अब फिलहाल तो ये सैक्रिफाइस किया गया तो आपको लेना तो पड़ेगा, आप ऐसे ही थोड़ी ना दोगे, तो ठीक है, इन्होंने इसको ले लिया. आफ्टर दिस ओके, नाइट डेवलप्स, अटैक्स ऑन क्वीन, अटैक्स ऑन बिशप, सेइंग कि भाई अब आपको क्या करना है. बिशप तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है एंड क्वीन को भी कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. सो नाउ मिकाइल ताल सेज कि ओके आई विल डेवलप हियर एंड मेरा बिशप प्रोटेक्टेड है. बट आफ्टर दिस देयर इज अ डबल अटैक ऑन दिस बिशप एंड आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे इसको? किंग तो आगे आ नहीं सकता क्योंकि ये इलीगल मूव होगा फिर अकॉर्डिंग टू चेस. सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस? He says ki okay, I will block with this knight, and now this is easily going to be taken. And after this move there is easy move like कि हम फिर से pressure build करेंगे after attacking this. But Rashid here tries to be Mikhail Tal, and वो उन्होंने सोचा कि मुझे मिकाइल ताल का ईगो मिकाइल ताल के फॉर्मेट में ही क्रश करना है. सो ही ट्राइज टू सैक्रिफाइस हिज नाइट इन द सेंटर, से कि आप अगर इसको लोगे तो मैं इसको लूंगा. अभी सैक्रिफाइस नहीं है क्योंकि भाई देखो ये लेगा, yeah he it's a really sacrifice because कि दो अटैकर है एंड यहाँ पे एक ही डिफेंडर है, बट यू आर स्टिल अटैकिंग दिस पीस. सो वेरी मच कंफ्यूजन ओवर हियर. सो ठीक है, अगर आपने इसको ले ही लिया, राइट, तो रशीद क्या करेंगे? रशीद इज गोइंग टू टेक दिस एंड नाउ यू हैव टू टेक दिस बिकॉज अगर आपने नहा लिया होता तो आपका फिर ये यहाँ पर आ जाता, हैंगिंग हो जाता, राइट. सो इन्होंने ये लिया एंड आफ्टर इवन आफ्टर टेकिंग दिस ही इज नॉट गोइंग टू गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ चेक. और आप यहाँ पे किंग यहाँ पर लेके जाओगे, किंग के पास दो ही मूव से लीगल, या तो यहाँ या फिर यहाँ. अब ये बिशप हमने ऐसे छोड़ दिया, तो सपोज इफ यू गो हियर देन देयर विल बी मूव्स लाइक दिस एंड इधर यू कैन मूव हियर एंड देन दिस, ये रुक यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर मूव नहीं कर पाओगे, आपको किंग यहाँ पर मूव करना पड़ेगा एंड देन दिस चेक इज गोइंग टू लूज यू क्वीन ऑफ योर्स. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड इवन आफ्टर दिस कि अब यहाँ पर चले जाओगे तो फिर भी आपकी क्वीन तो चली जानी ही है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. So he's not going to take that. So what happens here really is he says ki okay, I'm going to take that pawn. Rashid, what is your whole idea after this? So Rashid says ki okay, अब हम आपके किंग को पिन करूंगा मिकाइल ताल. सो मीशा सेज कि ये कौन सा मूव है भाई, मैं तो सीधा बस इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा. बट नाउ रशीद सेज कि क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माय नाइट. अब ये बिशप ओपन हो चुका है, ये चेक है, फिलहाल तो आपको इसको नाइट को लेना पड़ेगा क्योंकि ये चेक है. So now he takes with the queen, and now this bishop is still pinned over here. This queen is behind this bishop, and is Rashid gonna trade this bishop for this bishop? And now Rashid here plays a move which will crush Mikhail Talsiko because Rashid sacrifices a queen in front, keeps the, it's not a sacrifice, he keeps the queen in front of Mikhail Tal bishop saying कि भाई आप नहीं ले सकते, आप ये आप ट्रेड करते बैठो, हम बाद में ट्रेड करेंगे, बट ये इसके ऊपर डबल अटैक है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका किंग है इसके सामने. सो व्हाट हियर मीशा इज गोइंग टू डू इज Misha needs to move his king, right? So after he takes this, he doesn't take with the queen because he needs to build a pressure. So इन्होंने इसको अपने रुक से लिया है and now he has to move his queen because this rook is going to give you hard times and there will be multiple discoveries over here. So he says ki okay Misha, are you ready for a queen trade? No. He says I am going to sacrifice my rook here.
what kind of sacrifice is it? ये तो सिंपली ले लेगा, but this is hanging. So after this takes, king moves, and after this check over here, king moves here, and in this position after taking this, Mikhail Tal says कि भाई I want to resign because यहाँ पर ये आप ले नहीं सकते. What else is a move? Check है, king d6. After king d6, knight f7, fork है, and this is fork. After this you lose your integrity, and if you still want to play you can play, but रशीद रज़मुद्दीन जीत जाएंगे क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मास्टर है. And I hope you love this video because you cannot just see someone sacrificing like this in front of Mikhail Tal. और कहाँ से, मतलब वो नाइट आपने देखा, वो नाइट कहाँ पे था? ये नाइट यहाँ पे था, एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ द गेम यही नाइट आपके किंग एंड क्वीन को फोर्क देने वाला है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर रशीद नजमुद्दीनो वाज. एंड इन्होंने आफ्टर दिस गेम मिकाइल ताल को बस ये करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ा कि दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ बिकॉज मिकाइल ताल लव्ड दिस काइंड ऑफ मैन. He loved this kind of game. He was playing chess for the fun. And this is the real fun. This is what a crowd wants. And I hope you love this video for today. And I hope we will reach 100 subscriber by the time I woke up in the morning. I hope I see that news. तो भाई जो भी मेरा प्लान है मंदिर में जाना है वो सब मैं कर पाऊँ. एंड टिल देन लव यू, टेक केयर, काजी का भावन्नो. आफ्टर दिस रशीद से क्या आप ओपन में जाओगे या फिर क्लोज में जाओगे?